دوستو وظیفے آپ نے بہت کرے ہوں گے، وظیفے آپ نے سنے بھی بہت ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو، دنیا کے اندر سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہوں گی، لیکن اس سے کیا آپ کو ملتا ہے میں نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، نہ ہی جان سکتا ہوں۔ لیکن آج جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ ہے سورہ فتح شریف کا، جس کا نام ہی فتح ہے، جس کا نام ہی فتح ہے۔ اور اگر جس کا نام فتح ہو تو پھر کوئی بھی کام ہمارا فتح ہونے سے رک نہیں سکتا ہے دوستو۔ تو آج اسی وقت اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں کہ آخرکار سورہ فتح کا جو وظیفہ آج ہم کرنے والے ہیں تو اس سے ہم کو کیا کیا ملنے والا ہے، وظیفہ بھی بتاؤں گا اور سورہ فتح کا نقش بھی ہے۔ اگر نقش آپ کو کسی بھی پریشانی کے لیے، یہاں تک کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو کام میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو اس کام کے لیے آپ اس نقش کو اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی ہر کام آپ کا بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں اور سورہ فتح کی فضیلت کیا ہے وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور اس کا وظیفہ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ تمام حضرات سننے والے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ولاگ۔ بہت ہی پیارا چینل ہے دوستو، اتنی محنت ہم کرتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان پریشانی میں ہے یا اس کا پریشانی میں وقت گزر رہا ہے تو آخرکار ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی ہماری دعا رہتی ہے اور ہماری محنت یہ رہتی ہے کہ میرا مولا آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اتنی پیاری چیز میں آپ کو دینے والا ہوں، بہت ہی زندگی میں آپ کو خوشی اور سکون حاصل ہو جائے گا۔ آئیے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے میں بتاؤں گا سورہ فتح کی فضیلت، اس کے بعد ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے سورہ فتح کا وظیفہ، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے نقش کے بارے میں، کیونکہ سورہ فتح کا نقش جو ہے اس کو تکثیر جنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے، کیسے استعمال ہوگا، وظیفہ کیسے کریں گے، کون سا ٹائم رہے گا، کتنی بار پڑھنا رہے گا، وہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سننے والے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دوستو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ برابر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ ویڈیو بغیر کسی پریشانی کے دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا۔ آئیے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے سنتے ہیں سورہ فتح کی فضیلت اور اس کے فائدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھ کو دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کون فرماتا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کیونکہ وظیفہ ابھی باقی ہے اور جو اس کا نقش تکثیر جنہ سورہ فتح کا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل کرنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے۔ سمجھے کیا چیز جو بتا رہے ہیں ہمارے آپ کے پیارے آقا؟ جو سورت نازل ہوئی، وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت فتح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ سورت فتح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دار النظم میں لکھا ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھنے پر مداح و مت کرے، یعنی کہ کثرت کرے، ہے نا، جب تک اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے گا مرے گا نہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی چیز، بہت پیاری چیز۔ جی ہاں، اور اس کے غم و رنج کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا، یعنی اس کا کوئی بھی رنج و غم ہوگا، کوئی بھی پریشانی میں ہوگا، سب اللہ رب العزت دور کرے گا اور ظالموں کے شر سے اس کو امن میں رکھے گا۔ جی ہاں، اگر کوئی ظلم آپ پر کرتا ہے، کوئی پریشان آپ کو کرتا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آگے سنیں، بعض عارفین فرماتے ہیں جو اس سورت کو اسلامی مہینے کا کوئی بھی چاند دیکھنے کے بعد فوراً پڑے گا تو سال بھر اس کی روزی کشادہ ہوگی، یعنی سال بھر روزی بڑھتی رہے گی، انشاءاللہ کھل جائے گی۔ جی ہاں، یہ میں نہیں بول رہا بلکہ تاریخ سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بیان کر کے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرا یہ اصول ہے، میرا یہ مشغلہ ہے کہ میں الحمدللہ خود بھی پڑھتا ہوں، لوگوں کو بھی مطلب جو ہے بتاتا ہوں۔ میں اس کے کوئی بھی انسان
कोई भी महीने का, जैसे मुहर्रम का चांद दिख गया, अब सफ़र का दिखेगा, रबीउल अव्वल का दिखेगा, रबीउल आखिर का दिखेगा, कोई भी महीने का चांद अगर देखते हैं, चांद देखने के बाद आप अगर सूरह फतेह पढ़ते हैं, समझे, और कसरत से पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल भर उसकी रोज़ी में कुशादा, मतलब जो है कुशादगी होगी। और जो रोज़ाना पढ़े वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में बैत का शर्फ हासिल करेगा। अगर कोई इंसान रोज़ाना पढ़ेगा लगातार, तो हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इंशाअल्लाह ताला बैत का शर्फ हासिल करेगा। और कमज़ोर अगर होगा, सुनिए ये फ़ायदे और फजीलत बता रहा हूँ, अगर सूरह फतेह पढ़ने वाला कमज़ोर होगा तो इंशाअल्लाह ताला कवी हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। और अगर गरीब होगा इंशाअल्लाह तो मालदार हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। मकरूज अगर होगा यानी कर्जदार होगा तो कर्ज से इंशाअल्लाह ताला उसे निजात मिल जाएगी। वाकई में अगर आप कर्जे से परेशान हैं, कर्जे से आप इतना परेशान हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह सूरह फतेह की तिलावत करें और सूरह फतेह का ये वजीफा करें। आगे सुनते हैं इंशाअल्लाह। बाद उलमा फरमाते हैं कि जो सूरह फतेह की मदावमत करेगा क़यामत के दिन सहाबा इकराम के साथ उठाया जाएगा। यानी कि जो सूरह फतेह की मदावमत करे वो कल इंशाअल्लाह ताला सहाबा इकराम के साथ मैदान महशर में उठाया जाएगा। आगे सुनते हैं क्या है। जिस शख्स पर कोई नागहानी मुसीबत आन पड़ी हो, यानी भाई परेशानी के लिए और मुसीबत के लिए ही तो ये वजीफा मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप। अगर कोई किसी शख्स पर नागहानी मुसीबत आन पड़ी हो या किसी मुसीबत के आने का खौफ हो कि आपको हमको लग रहा है कि भाई ये मुसीबत और ये परेशानी आने वाली है, तो या कोई मुहम दरपेश हो, तो उसको चाहिए कि जुमा की रात को, जैसे जुमरात की शाम होती है ना, जुमरात की शाम होगी तो वो जुमे की रात कहलाएगी। जुमे की रात को गौस्ल करके पाक कपड़े पहने और उसके बाद 4 रकात नमाज नफिल पढ़े। किस तरीके से? इस तरीके से पहली रकत आप जब नियत कर लें, 4 रकात की नियत कर लीजिए, उसके बाद पहली रकत में जो है सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा आप पढ़ें, यानी सना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको 100 बार पढ़ना है उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह। उफ़व्विदु, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर कोई मुसीबत दरपेश हो, आपको ऐसा महसूस होता हो कि ये मुसीबत आने वाली है किसी भी तरीके से, चाहे वो कर्ज के ताल्लुक से हो, बीमारी के ताल्लुक से हो, किसी भी ताल्लुक से अगर हो, और आपको ये महसूस करते हो कि ये परेशानी आने वाली है, तो हमको जो है जुमे की रात गुस्ल करना है, पाक कपड़े पहने, पाक कपड़े पहनने के बाद में 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें, नियत कर लें, सना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 100 मरतबा पढ़ें उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, समझे, रुकू करें, सजदा करें। फिर दूसरी रकत में इंशाअल्लाह ताला सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर 100 बार पढ़ें अला इलल्लाहि तस्वीरुल उमूर, अला इलल्लाहि तस्वीरुल उमूर, 100 मरतबा पढ़ लिया, फिर रुकू करें, कायदे में बैठे, उसके बाद फिर उठ जाएं। फिर जब तीसरी रकत में खड़े हों तो सूरह फातिहा के बाद पढ़ें नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। 3 रकतें हो गई, रुकू करें, सजदा करें, फिर चौथी रकत के लिए खड़े हो जाएं। फिर चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में 100 मरतबा पढ़ें इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, जो कि सूरह फतेह यहीं से शुरू होती है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। 100 बार पढ़ लें, रुकू करें, सजूद करें, उसके बाद सलाम फेर लें, कायदे में बैठ के उसी तरह बैठे, समझे, और जहां पर आपने 4 रकात नमाज नफिल अदा की है, जैसे बैठे हुए हैं वैसे ही बैठे रहें और सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा पढ़ें गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीह। फिर सजदे में जाकर 100 मरतबा कहें अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह ताला आप जो दुआ कर रहे हैं ना, तमाम ही बुजुर्गों का ये कौल है और आमिलाने कामिल का तजुर्बा है कि सजदे से सर उठाने से पहले पहले इंशाअल्लाह हाजत पूरी हो जाएगी। जी हाँ, सजदे से आपका दुआ खत्म नहीं होगी, सजदे से इंशाअल्लाह सर नहीं उठ पाएगा आपका और इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ओए होए, सूरह फतेह का ये शुरू के लफ्ज़ हैं, ठीक है। और ये तो हो गया दोस्तों फजीलत और फ़ायदे। अब मैं इसके वजीफे की बात करता हूँ। तो हमको जो वजीफा करना है जुमे के दिन इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और 11 मरतबा हमको सूरह फतेह पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक
11 मरतबा सूरह फतेह शरीफ और फिर 11 मरतबा दुरूद पाक। इस तरीके से आप इंशाअल्लाह ताला वजीफ़ा करें, और वजीफ़ा करना है 3 दिन या फिर 11 दिन। 3 दिन करते हैं इंशाअल्लाह बेहतर, और 11 दिन करते हैं फिर तो सोने पे सुहागा। जो चाहेंगे अल्लाह की बारगाह से इंशाअल्लाह ताला वो आपको हासिल होगा। अब वजीफ़ा करने के बाद में आपको अभी वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हुआ है, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, 11 मरतबा सूरह फतेह पढ़ी और फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, वजीफ़ा हो गया, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो क्या करना है हमको, वजीफे की जहां पर हमने वजीफा किया उसी जगह पर बैठकर सजदे में चले जाइए और अपने हाथों को सजदे के नीचे इस तरीके से रख लीजिए, जैसे दुआ मांगते हैं ना, इस तरीके से रख लीजिए और अल्लाह की बारगाह में सूरह फतेह का सदका देकर दुआ करें। इंशाअल्लाह सजदे से सर नहीं उठेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर उस दुआ को कबूल करेगा जो आप चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से आप ये वजीफा करें 3 दिन या फिर 11 दिन। ये तो हो गया वजीफा, फायदे भी मैंने बता दिए, फजीलत भी बता दी, वजीफा भी बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर में नक्श की। जो सूरह फतेह का नक्श है इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, स्क्रीन पे आपको नजर आता होगा। अब इसके नक्श की बात करते हैं। अगर किसी भी इंसान को परेशानी है या फिर आप कि कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि यार कहीं भी हम जा रहे हैं, मुकदमे में हैं या हाकिम के सामने या किसी भी इंसान के सामने जा रहे हैं, सामने वाला इंसान हमसे ज़बर है, हमसे पावरफुल है और हम बात कैसे करके माने, कैसे करके मनवाएं, नहीं हो पा रहा है, तो इसी असना में इसी काम के लिए इस नक्श को लिखें और इंशाअल्लाह ताला अपने पास रख लें। अल्लाह ने चाहा तो जो काम के लिए निकलेंगे आप, कामयाबी इंशाअल्लाह आपके कदम छूमेगी, ठीक है। फराखी रिज्क के लिए, यानी आप चाहते हैं रिज्क में बरकत हो, इतनी बरकत हो कि हमसे संभाला ना जाए, तो आप सूरह फतेह का ये नक्श तकसीर जिन्ना लिख लें और अपने हमेशा अपने परस में रखें। उसके अलावा मुकदमा में जाते वक्त, अगर आपका मुकदमा है, मुकदमे में जाते वक्त इसका पानी धोकर पीने और कुछ मुंह और हाथों पर मलकर हाकिम के सामने जाए। अगर हाकिम का ये खून क्यों ना किया हो इंशाअल्लाह ताला माफ कर देगा इंशाअल्लाह, इसकी ये ताकत और पावर है, ठीक है। इसी के साथ साथ जिसके पास ये नक्श होगा, जिसके पास ये नक्श होगा तो इंशाअल्लाह ताला दुश्मन तलवार लेकर हमला आवर क्यों ना हो, अगर किसी के पास सपोज कीजिए मेरे पास ये नक्श है, अगर दुश्मन मुझ पे हमला भी करने के लिए तैयार होगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला नजर से नजर मिलते ही वापस लौट कर चला जाएगा और हमला नहीं कर सकेगा। और चौथी बात, अगर किसी इंसान पर जो है, अगर किसी इंसान पर सहर और जादू किया हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आसेब और मर्ज में इसी नक्श को मरीज को इसका पानी धोकर पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला उससे भी उसको शिफाया भी हासिल होगी। और इस नक्श को जो है इसीलिए तकसीर जिन्ना कहा जाता है। ये सूरह फतेह की फजीलत और फायदे, वजीफा और नक्श के बारे में मैंने आपको बताया, एक एक लफ्ज में इंशाअल्लाह साहब को सच्चाई के साथ मैं बताऊंगा और मैंने बताया है और बताता रहूंगा। मैं खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह आपकी और दीन की खिदमत करता हूं। जब तक जिंदगी है, बदन के अंदर सांस है, कि खून का कतरा इंशाअल्लाह जब तक मेरी बदन के अंदर शामिल है, जब तक मैं इंशाअल्लाह दीन की और आपकी खिदमत करता रहूंगा। इसी तरीके से आप प्यार दीजिए, इंशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ मुझे निभाते रहिए, मोहब्बतों के साथ मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपकी मोहब्बत मेरे लिए काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत आप करते हैं जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको दीन और दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर परेशानी से महफूज फरमाए इंशाअल्लाह ताला। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज मुकम्मल करता हूँ। आमिल रशीद अख्तर के नाम से मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया से ही नहीं बल्कि बाहर अदर कंट्रियों से भी मेरे पास लोग आते हैं और मेरे पास से इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरियर के द्वारा, कोरियर के ज़रिए से जाता है, मैं पहुँचाता हूँ। आप भी इंशाअल्लाह ताला चाहते हैं कि मुझसे कॉन्टेक्ट करना तो ज़रूर इंशाअल्लाह मेरी हर वीडियोस पे आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन उन लोगों से बिल्कुल बच के रहें जो लोग आज के वक्त में अपनी दुकान खोल करके बैठे हो। अल्लाह का फजल है, हाफिज़ कुरान भी हूँ, क़ारी कुरान भी हूँ, आमिल भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का मोहताज नहीं, मेरे मौला ने किसी का मोहताज नहीं रखा। अल्लाह का बड़ा फजल व एहसान है। आपकी खिदमत के लिए मेरे मौला ने शायद यहाँ तक मुझे पहुँचाने, ये उसके लिए मेरे मौला का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का
ہزار بار نہیں کروڑوں اربوں بار احسان عظیم میرے مولا کا کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے الحمدللہ مجھے اس نے دنیا کے اندر بھیجا۔ خیر انشاءاللہ تعالی محبتوں کے ساتھ ہم کو محبت پیار دیتے رہیے، چینل سجاد نظامی ولاگ کو انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیے، پیار دیتے رہیے۔ زندگی باخر اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے بہت ہی پیارا چینل سجاد نظامی ولاگ۔ اللہ حافظ دوستوں۔